शायद यही कंटेंट आपके पास भी है ना? यस मैम। जब ये कंटेंट है सारा कुछ क्लियर इसमें है। ठीक है, स्टोरी सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, और किसी का म्यूट कर लीजिए अपने आप लोग। ये सब शायद कवर कर चुके हैं आप लोग। क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है कि नहीं, सब पता नहीं हमको। अटेम्प्टेड है क्या क्वेश्चंस? यस, नो? No, ma'am. No. Don't know, ma'am. Not now. Not attempted. All right. Can you answer the question? Since this is already done, so I'm asking you. Who was Ratan? What happened to her in the end of the story? She is a orphaned child. Hello? What happened to her in the end? Who was Ratan and what happened to her in the end of the story? Can anybody answer this question? Yes, ma'am. Yeah, please answer. Ratan was a orphan and a poor girl. At the end of the story, the postmaster left Ratan and went to his hometown. Yes, ma'am. Okay, this is a very short answer. The answer has to be long. You cannot give a two-line answer. Can anybody else try? Put in more facts. Hello? Put in more facts. In two-line answers, what will you get? The whole page will be blank. If you just write two lines, you will write. What marks will I give you? Tell me. Actually, describe the Ratan. Yes, somebody please try and elaborate the answer. Like there are two questions involved, and it has to be long. If you're aiming for 10 marks. Ma'am, actually, give me some hint. Ratan किस village से belong करती थी? Yes, what? रतन कौन सा विलेज में रहती थी? उस नाम बताया गया था क्या स्टोरी में? Yes, she was living in Ulapur. क्या मैम? She was living in Ulapur. Ulapur. Yes. Can anybody else answer this question? Anybody? No point moving on from one lesson to another, from third to the fourth to the fifth. When you have not understood, when you cannot answer the question, you may have understood. That's true. Listening to the story, understanding the story, but you have to explain, no? And this is where English comes. You have to narrate. You have to tell the story. So the two questions: who was Ratan, and what happened to her at the end of the story? People, please put your cameras on.
Ma'am, firstly began describe who was Ratan. Ratan was a Yes, poor girl. I'm not asking you not to say. I'm just encouraging you to speak. This will also improve your English. This is like a storytelling. How nicely you can tell the story. You know the story. You have understood everything. But the only problem is that now you have to put the story in your own words into English. Right? So please start speaking. And all those without their cameras on will be in problem. Yes, please continue. It's a very simple story. Now I'll tell you how you will, since nobody is answering, let me help you. Who was Ratan and what happened to her at the end of the story? Ratan was the character from the story The Postmaster, written by Rabindranath Tagore. See, you will have to introduce the character. So, Ratan was a character. Please write, if you write down notes so that you can, next time when I ask you, you should give me the answer. Take notes, write down the notes. Next time I'm going to ask you. I can take your exam also. I will take your test also. So I am teaching you here, giving you the guidelines how to answer questions. Right. Pawan, your camera is not on. Pawan, Suhani, repeatedly I have to tell you. मैम I want नेटवर्क इशू है. I want all of you to, I want to see you writing. So Ratan was a character. In the story, the postmaster, written by Rabindranath Tagore. Full stop. Now you have given the introduction. You have introduced her. वो एक किरदार, एक कैरेक्टर था उसका, रविंद्रनाथ टैगोर के की कहानी द पोस्ट मास्टर में उसका. Answering the understanding is something quite different. Answering the question is very different. First, सबसे पहले क्या होता है, आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना. So what I said, Ratan was a character from the story The Postmaster, written by Rabindranath Tagore. Change paragraph. Change the paragraph. Next paragraph. Start a new paragraph. Ratan was an orphan child, an orphan girl. Who lived in Ullapur. She lived in. Who lived in Ullapur? Ratan was an orphan girl who lived in Ullapur. When she met the postmaster, she became fond of him. She became fond, F-O-N-D, fond.
Fond means she started liking him as a family. She became close to him. Please repeat, Considering, ma'am. Ma'am, considering, last line. no, yes. When she met the postmaster, she started liking him like a family, an elder brother. Dada, she called him. She learned to read and write. She learned to read and write. She knew what it meant to be a family, what it meant to be a family. Now she was happy. Now she was happy. Ma'am, read and write what? You stop me when I am moving forward and stop me that I have not completed. She Okay. learned to read and write. And knew, Knew, and knew the importance and knew the importance of an elder brother. Full stop. Very soon, she became closer very soon she became closer very soon she became closer to the point that to the point that very soon she became closer to the point that her whole world her whole world was in her dada. No, this was her character. The first part of the question.
Who was Ratan? Ratan was like this only. An orphan girl. She met the postmaster. She became very fond of him, very close to him. And then her whole world was the Dada. Now the second part. यहाँ पूरी समरी थोड़ी लिखनी है, नहीं लिखनी है, आपको बस क्वेश्चन दिया गया है ताकि उस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके आप लिखें. एक पार्ट तो हो गया, who was Ratan, ठीक है. Now the next part. What happened to her at the end of the story? Can anybody give me the answer? These questions in your exam can be of 10 marks. In your university also, this will give you some marks. Right? But writing 2 lines will not be enough. Okay. So, anybody can tell me what happened to her at the end of the story? Hello? मैम लास्ट में पोस्टमास्टर चले गए थे और वो जो लड़की थी वो बार बार चक्कर लगा रहे थे पोस्ट ऑफिस. सही है. Did you see the movie? आपने देखा था वो फिल्म क्या? कौन सा? The Postmaster. फिल्म नॉट मैम, हमने स्टोरी पढ़ी. अच्छा, आपको अगले सेशन में आपको YouTube पे दिखा देंगे. और चलो, इंडिया अगेन तो समझ में आ रहा है कि आपको करना है. और ऑन बीइंग अ बोर वो भी पीपीटी बना देंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो इसको लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड टू हर एट द एंड ऑफ द स्टोरी? वो फिर से ऑर्फन के ऑर्फन ही रह गया और वो पहले से भी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए. वो फिर से वो सैड थी और भी ज्यादा सैड हो गई. या वो फिर पोस्टमास्टर से मिलने से पहले उतनी सैड नहीं थी वो. नहीं, जाने के बाद ज्यादा डिप्रेशन में. क्यों नहीं सैड थी? इसलिए कि वो पता नहीं था कि भाई क्या होता है, दोस्ती क्या होती है, कंपेनियन क्या होता है. नहीं जानती थी वो. लेकिन अब वो सब जान रही है. ह्यूमन फीलिंग्स जान रही है, ह्यूमन इमोशंस वो जान रही है. So write the next part. When the postmaster leaves Olapur, when the postmaster leaves Olapur, she loses all hope. Loses. LOSES. She loses all hope. Full stop. Her happiness is shattered. 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 Which means finished. बिखर जाना. उसकी सारी खुशियां क्या हुई? बिखर गई. She loses all hope. Or if you want to write it, if you're writing in the past tense. So when the postmaster left Olapur, she lost all hope.
and her happiness is shattered. Shattered का मतलब समझ गए ना? यस मैम, बिखर जाना। मतलब खुशी उसकी सारी बिखर गई। She could not stop crying. She could not, हम आपको बहुत सिंपल इंग्लिश में हम लिखवा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो बोलने में या फिर लिखने में भी, ठीक है। She could not stop crying. Because her only hope was because her only desire was, desire मतलब होता है ख्वाहिश होना, इच्छा होना। उसका तो एक ही इच्छा थी उसकी कि वो पोस्ट मास्टर के साथ जाए। Because her only desire was, DESIRE, desire, ख्वाहिश, इच्छा। Her only desire was to go along, के साथ जाना, to go along with her dada. Her only desire was to go along with her dada. Full stop. She could not bear, BEAR, बर्दाश्त उसको नहीं हो रहा था। She could not bear the separation, जो अलगाव जो हो गया था, वो उसको छोड़ के चला गया था, वो separation. She could not bear the separation, SEPARATION. But was helpless. बर्दाश्त नहीं हो रहा था लेकिन उसको कुछ वो कर नहीं पा रही थी, मजबूर थी वो। But was helpless. Once again, she had been orphaned. I'm using orphan as a verb. Once again, she had been orphaned, ORPHANED. A little more sad. Sadder. Once again, she had been orphaned. Sadder, SADDER. Miserable, MISERABLE. मतलब बुरी स्थिति में होना, कमजोर हो जाना। कमजोर नहीं, मिजरेबल मतलब होता है वेरी बैड फीलिंग। यस मैम। मिजरेबल मतलब होता है आई एम फीलिंग मिजरेबल, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है। और मिजरेबल स्टेट मतलब होता है कि वो स्टेट जो कि बहुत ही खराब होता है। और किसी को कहते हैं कि द पेशेंट वाज इन अ मिजरेबल कंडीशन, दयनीय हालत, मिजरेबल,
बद से बदतर. So she was sadder, miserable, and lonely. 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 अकेली. Lonely. Hoping. फिर भी उसको एक उम्मीद थी. Hoping that the postmaster would come back. Hoping that the postmaster would come back and take her along. कम बैक के बाद Take her, hoping that the postmaster would come back and take her along. वापस आकर के उसको ले जाए. वो उम्मीद कर रही थी कि वो वापस आकर के उसको अपने साथ ले जाएगा. Hoping that the postmaster would come back and take her along. So, this is the answer. Who was Ratan and what happened to her at the end of the story? Let me tell you, students who study literature, they can write better, they can think better, they can be creative, they can write, because they are looking into the other people's problems. Isn't it? Now raise your hands who has not understood. Those who have understood, let me know. Those who have not understood, raise your hands. नीतू हाथ उठा रही है क्या? No, ma'am. So how many pages did you write? 1 page. यस मैम फुल 1 पेज Full scale page or show me? फुल 1 पेज Show me. फुल 1 पेज मैम स्वाति गुप्ता दिखा रही, दिखाओ. फुल 1 पेज Okay. So, I'm not blaming you. I'm not blaming anybody. I just want to tell you, you have not started writing. And even in Padaputra classroom, I told you, start writing question answers. Questions are there. I've given you questions. Questions हैं वहाँ पे. एक्चुअली स्कूल टाइम में थे मैम, तब उस टाइम में क्वेश्चन होते थे लिटरेचर के, बट इतने डिटेल रियरली मिलते थे. जब ड्रामा उसमें होते थे या कोई एक स्वान का कहानी था एज अ 10th क्लास में, तो उसमें होते थे, तब इतना लॉन्ग जाता था. एज अ 4 या 5 लाइन में हो जाते थे. तो ऐसा बहुत लॉन्ग वे तो नहीं. अगर हम आपको बैठ के लिखाने लगेंगे तो 50 पेज में लिखा सकते हैं आप. नहीं, डिस्क्रिप्शन तो सही है इसका, जो पूछा उसका जवाब तो मिला है पूरा. हाँ, तो समझ में आया ना कि ये आंसर सही है. यस मैम. ये क्वेश्चन जो आता है, हम लोग एग्जाम जो लेते हैं जनरल एग्जाम, वो 10 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का. शॉर्ट आंसर 5 मार्क्स का. यस मैम. तो 5 मार्क्स का जो आंसर होगा, अगर सेम क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का, तो उसमें बहुत कुछ आप छांट के लिखेंगे, लेकिन कंटेंट गड़ाएंगे नहीं. और अभी जैसे हमने फीलिंग के बारे में लिखा, होप, दिस एंड दैट, तो वो सब छांट वाट करके जो मेन पॉइंट है वो आप लिखेंगे. लेकिन 5 मार्क्स के लिए हाउ मच यू विल राइट? हाफ पेज, Yes. not 1 or 2 lines.
अगर आपका आंसर 2 मार्क्स के लिए हो रहा है, लिखिए 2 लाइन लिखिए, मेरे को क्या है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, आपको देखिए ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी कि ऐसे भी लिखा जाता है। दूसरे का स्टाइल आप देखते हैं, जैसे लोग दूसरे की किताबों को क्यों पढ़ते हैं, देखने के लिए वो कैसे लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हर किसी के पढ़ाने का तरीका दूसरा होता है, वो डिफरेंट Yes, वर्ड ma'am. यूज करते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, वो डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं। कोई बिल्कुल कहानी में खो जाता है, बिल्कुल वहां से निकलने में मुश्किल होती है, वापस आओ बोलना पड़ता है। अगर वो बात आ गई कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी अगर बोल रहे हैं, तो बिल्कुल किरदार में आप अंदर चले गए। दैट इज व्हाट आई वांट। जब आप इसको प्रेजेंटेशन देंगे, इसी क्वेश्चन को, देयर कैन बी प्रेजेंटेशन, आप लोगों को लगता है जीडी और दिस एंड दैट, जितनी प्रेजेंटेशन लिटरेचर में होती है उतनी शायद ही किसी में होती है। अब कोई रतन बन जाता है, कोई पोस्ट मास्टर बन जाता है, डायलॉग्स पर डायलॉग्स हो रहे हैं, उसमें कॉन्वर्सेशन हो रहा है, सीक्वेंस बताया जा रहा है। पहली बार रतन और पोस्ट मास्टर मिले, क्या क्या बातें उन्होंने की होगी, डायलॉग लिखिए एक। कोई जरूरी नहीं कि किताब से लेकर के, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अपना बनाएंगे। मान लीजिए कि हम पोस्ट मास्टर हैं और आप में से कोई रतन है, तो हम एज अ पोस्ट मास्टर जब हम पहली बार उसको मिलेंगे, एक छोटी सी बच्ची है, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे बताइए, क्या नाम है तुम्हारा, अच्छा तुम यहाँ रहती हो, बोलेगी मैं रतन, बहुत प्यारा नाम है, और क्या बोलेंगे, और कोई क्या कह सकता है, क्रिएट योर डायलॉग, क्रिएट योर कॉन्वर्सेशन। यस मैम, फिर उसके बारे में पूछेंगे तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम यहाँ कब से हो, हाँ हाँ, ये सब। तो आप एक 4 लाइन का डायलॉग लिखिए। रतन पोस्ट मास्टर कब शुरू करेगा, पोस्ट मास्टर रतन, पोस्ट मास्टर रतन, पोस्ट मास्टर रतन, 3 डायलॉग आप बनाइए ना, पूरी कहानी थोड़ी करें। फर्स्ट मीटिंग विद द पोस्ट मास्टर, तो गांव का जो परिवेश है हम लोगों का, तो कोई भी जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पाँव छू के प्रणाम करते हैं, करते कि नहीं, तो वो उसका भी एक जेस्चर होता है, द ग्रीटिंग फ्रॉम रतन, शी टचेस द फीट, टचेस हिज फीट, द पोस्ट मास्टर शॉक्ड हो जाता है, इज शॉक्ड, ये किताब कहानी में नहीं है, क्रिएट करिए। अब अचानक से वहां पर है, वहां गया है, छोटी बच्ची दौड़ करके आके उसका पैर पहुंच भी लेती है, अरे कौन, अच्छा अच्छा तुम यहाँ रहती हो, क्रिएट, बच्चों ने किया, इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों ने क्रिएट किया है, बच्चों ने स्किट बनाई है। और ऐसे बच्चे जो बीबीएम के हैं या बीसीए के हैं या बीएससीआईटी के हैं, इसी क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देते देते, कॉन्वर्सेशन ड्रामा करते 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 इतने लोग स्मार्ट बन गए कि कहीं से कुछ भी बोलो उनको डर नहीं लगता है, किसी भी एचआर से इंटरव्यू हो रहा है नो प्रॉब्लम, इसलिए क्लास में इतना कुछ हो चुका है, इतनी बार प्रेजेंटेशन हो चुकी है, तो अब 10-20 पैर बन जाता था, मैम मैं रतन हूँ और ये पोस्ट मास्टर, नहीं मेरे ग्रुप में मैं रतन हूँ ये पोस्ट मास्टर, तो कम से कम 10-12 रतन और पोस्ट मास्टर बन जाते थे। चलो लेट्स स्टार्ट। जितनी भी कहानियां आपके इसमें हैं, सब पे लोगों ने किया है, सब पे मजा भी आता है, ठीक है, लेकिन लिटरेचर से भागोगे तो लगेगा कहाँ से ये सिर पे सब बोझ आ गया, कुछ समझ में नहीं। होगा तो ना मैम।
अब लेकिन जब आप उसको इंटरेस्ट दिखाइएगा, और एक बार के लिए इंटरेस्ट दिखाइए, बिकॉज लिटरेचर जो पढ़ते हैं जो बच्चे, मैं बार बार ये बोलती हूँ कि उनकी लिटरेचर की वजह से उनकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाती है, बिकॉज उनका सोचने का नज़रिया बदल जाता है, वो दूसरे के प्रॉब्लम्स में ज़्यादा देखने लगते हैं। जैसे किसी ने कहा कि बड़ा वो बदमाश था, वो उसको ले नहीं गया, तो आपको फीलिंग हुई ना रतन के लिए कि क्या था, बच्ची को ले जाता, राइट? तो मैं तो होऊंगा तो मैं जगह पे रहता तो मैं तो उसको ले जाता। तो इस तरह का एक मोनो एक्टिंग भी लोग करते हैं, जैसे आई एम के पोस्ट मास्टर, वन मैन शो, वन, और वो अकेले में बात कर रहा है, पोस्ट मास्टर है, ओला पर पहुंच गया, अब क्या बोल रहा है, ओह नो दिस इज ओलापुर, एंड वो यहाँ वहाँ देख रहा है, एक्टिंग कर रहा है, कैसे रहेंगे, हाउ विल आई लिव हियर, लुक एट द रोड्स, माय गॉड, वेरी बैड, oh my house at Kolkata, such a big house, the roads are so good there, तो एक मोनो एक्टिंग होती है 5 मिनट की, वो करते हैं, बच्चे करते हैं, बच्चों लोगों ने, स्टूडेंट्स ने किया है, थोड़ा सा गाइडेंस जैसे आपको हम भी दे रहे हैं, उनको गाइडेंस दे दिया, उसके बाद तो वो लोग इतने स्मार्ट बन गए कि हर क्लास में नया, जैसे ही कोई नई शुरुआत हुई बस एजेंडा बन गया, इसका स्किट तैयार हो गया, इसका ड्रामा तैयार हो गया, कोई डायलॉग लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो वो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एंड बिलीव मी that they have improved so much. ठीक है, आप भी कर जाएंगे, और डरिए मत खाली, जो डर गया वो मर गया। मर गया नहीं, ऐसे मुंह बना के उसने बैठा, कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, जो सही में कुछ नहीं किया, ऐसा यस सिमजन बन के भी कुछ नहीं किया, तो आज आप बोलिए we will do it, and we will मैम convert literature class into communicative English class. जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपसे, आप भी डिस्कस कीजिए, डिस्कस। Communicative English means speaking English. Speak does not mean only grammar. Communicative English means speaking, writing, thinking. Everything is involved. Okay, then I'll take your. I've already taken your attendance and my time for the new class. Thank you all. Thank you, ma'am. मैम। थैंक